और गणेश जी को जो है, दैट हैज टू बी प्रूव्ड। मैथोलॉजी अलग चीज है, मैथोलॉजी को थोड़ा सा अलग कीजिए, नॉलेज को अलग कीजिए। ग्रीक मैथोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त है, इंडियन मैथोलॉजी भी जबरदस्त है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, सोने की चिड़िया, दिस वर्ड वाज यूज्ड। आप सब जानते होंगे कि सोने की चिड़िया इंडिया को कहा गया जहांगीर के पीरियड में। इंडिया बिकेम richest country in the world during the period of Jahangir, और India was described as the bird of golden bird। यानी हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी, 25% of GDP of the world was in India at that time। जो भी अच्छाइयाँ जिस पीरियड में हूँ, जिस रूलर के हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, हर चीज, अच्छी चीज को हमें लेना चाहिए। वी शुड बी इंक्लूसिव, वी शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव। विद दीज वर्ड्स आई नाउ आस्क वेदर माय सेकंड resource person is joining. There was some problem in sending him link. He already joined, sir. He already joined. Join कर लिए सब। अच्छा, आप कैमरा ऑन कीजिए अकबर साहब, आपका कैमरा ऑन नहीं है। Now we have the, yes, thank you, कैमरा ऑन हो गया उनका। प्रोफेसर अकबर हुसैन इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। और चूंकि आजकल की दुनिया में बड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, उसी से बीपी बढ़ता रहता है। मुझे लगता है इनके लेक्चर के एंड में हम सब लोगों का बीपी थोड़ा नीचे आ जाएगा। Now, without taking much time, because we already exceeded lot of time, I request Professor Akbar Hussain Saab to share his thoughts with all of you. It's a large gathering, 200 people, more than 200 people are participating in this course. Akbar Saab, we request you to be both bilingual, English as well as Hindi, because participants from South are there, participants from North India are there. Don't make the entire speech in Hindi only, and try to be bilingual. Mix कर दीजिए दोनों को। Thank you. Okay. Yes. Thank you. Okay. Thank you, Professor Bijapur sir. Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Namaskar, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. बंद कर रखा। Good morning, sir. यूजेस लिख रहा है। Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सुप्रभात। बंद कर। दही पाती। जी अकबर साहब। नहीं, आप नहीं, वो स्क्रीन शेयर आप जो है ना, क्या कहते हैं, कैमरा ऑन कर दीजिए आपका। वो शेयर आ गया, आप दिख रहे थे, अभी तो दिख रहे थे, अभी फिर नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, नहीं तो वो कोई बात नहीं, आप, मुझे भी नहीं पता इसका कैसे सिस्टम है। आप अपना पीपीटी अपने पास तो होगा ना सर? मैं हेल्प करूं? हाँ साहब, सर मैं हेल्प करूं स्क्रीन शेयर करने के लिए? हाँ, स्क्रीन शेयर के लिए इनको मदद कीजिएगा, पीपीटी दिखाना चाहते हैं। जी अकबर सर, इस पे क्लिक करिए, एक बॉक्स बना हुआ है, उस पे एरो बना हुआ है, शेयर स्क्रीन करके, जस्ट शेयर स्क्रीन। हाँ, कैमरा के बराबर में आप उस पे क्लिक करिए सर। एक विंडो ओपन होगी, उसमें एंटायर स्क्रीन वाले पे क्लिक करिए सर। मुझे दिखना चाहिए। Is it okay? आ गया, ओके, आ गया सर। Okay, thank you very much. The topic of my presentation is
psychosocial and spiritual approaches to stress management. As you know that stress is a fact of life. So without stress, there is no life. Every one of us experienced either psychological, social, spiritual, occupational, or organizational stress. So we cannot escape from it. But the only thing which matters is that how to deal with this stress. So there is no point that it is a dynamic condition in which an individual is confronted with an opportunity, a demand or resource related to what the individual desires or what the outcome is perceived to be both uncertain and important. So sometimes it develops and we do not know the reason why it happens to me, even though everything seems to be normal. But it is more a perception of an individual and how you viewed, how you perceive the things that matters. So of course there is no, so in the year 1998, I have classified that stress disorders or stress is linked with a number of disorders or the diseases like gastrointestinal disorder. It is also due to stress, like peptic ulcer, gastric duodenal or colonic. Similarly, cardiovascular disorder, neurocirculatory asthenia, cardiac neurosis, hypertension, and heart disease, angina pectoris, congestive heart failure, myocardial infarction. Similarly, respiratory disorder is also there, like bronchial asthma, hyperventilation, urogenital disorder, like impotence, urinary infection, spermatoria in males, and amenorrhea or dysmenorrhea and menorrhea hagia in females. These are all disorders. Similarly, dermatological disorder, skin related, like angina, neurotic eczema, psoriasis, eczema, neurodermatitis, endocrine disorder like hypo and hyperthyroidism, or diabetes, maybe either due to mainly diabetes 2, type 2, and exocrine disorder, that is acne, cotton mouth, profuse sweating, and the neurological disorders, impairments in taste, vision, smell, and tongue movement, affective disorder like depression, anxiety, tension, headache, psychogenic headaches, and migraine. So almost every disease is linked with stress. So here now I am in the next slide. I am going to show you which part of the body is, if part of the body is affected, and what the response to that stress and the long-term effect. For example, eye. And the response to stress is pupils widens. हमारी पुतलियां जो है वो फैल जाती हैं. Similarly, mouth and stomach glands. So reduced production of saliva and digestive fluids. Hello. Hello. So it is due to poor digestion of food. Similarly, lungs. Response to stress is constriction of bronchi. Long-term effect क्या, asthma like, heart, stomach, intestines, pancreas, vessels, skin, muscles, immune system. So all these different body parts are linked with the different types of responses, and a number of them, and it has a long-term effects that you may say ultimately it affects on our physical health and mental health, both. So now, instead of sharing
review point with what is stress and what are the different types of stress, like hypo stress or hyper stress. I would like to focus with the number of the strategies, social or psychological and spiritual strategies, which can be more meaningful to deal with the stress. So the sort of a model which I am going to present you, it is basically, I have developed an analytical model based on the word stress and stress management. In the word stress, there are 6 letters, S-T-R-E-S-S. The first letter is stands for S, that is social support. So, of course, social support is closely related to coping with this stress. So, there are a number of social support, but in the literature, you will find 3 different kinds of social support, like social networks, social relationships, and social support. But I consider there may be a 13 different types of support. Okay, suppose if you analyze the social support as an acronym, अगर आप इसको analyze करें तो देखिए, the first letter is S in the word social, that is the structural support. If you receive structural support in the form of a housing, shelter, and it is sometimes it is also called the tangible support. So of course it reduces or plays the buffering role with regard to cope with the stress. And O stands for organizational support. If you receive support from your workmates or colleagues in the organization, it helps you in reducing your either familiar stress or the organizational stress. And the C, the word later, social C is there. That is the community support. So, of course, there is no doubt that sometimes we need community support with regard to searching the practical solutions or for the stress. Similarly, I stands for informational support. That is the media, or something like in the case of the COVID, when we experienced the different kinds of the trauma linked with the COVID. So of course, the informational support helps us a lot. That is how to deal with it. Because when this disease developed, so of course, there was at that time, no remedy was available, and everyone was trying to search how to deal with it. The informational support is very necessary. And the A, that is the affective support. That is so-called the emotional affect support, means emotional support. That is also more important, particularly when a person face a trauma or traumatic stress related to the sudden death of any family member. So that in that case, we need effective support. And the L stands for life-saving support. Life-saving support is needed in the case of the like cardiac arrest, or those people who suffer from PPH, like pulmonary primary hypertension. So they need life-saving support. Similarly, another word, the social support is support. So S stands for spiritual support. The spiritual support means maybe in the form of a God support, or when we feel the presence of the God within or the outside. And the U is the unconditional support. The unconditional support is usually given by the doctor. That is the unconditional support. P, perceived support. So how much you feel or the presence of a particular support, and that is more important.
And another P is the parental support. The children's, they need parent support in order for the personality development or other things. And the O, in the word support, there is an O later. O means other support. Other support may be in the form of the like a neighbor's support or the friend support that is needed. Or R is received support. How much support you received from the different networks or something like that. And the T, the last letter is T, tangible support. That is in the form of a housing, clothing, and shelters. So this is very important phenomena, and it serves as a model. From earlier evidences, it may be concluded that social support serves as a protective buffer for individuals during times of high stress, reducing the negative impact of stress. But some people, frankly speaking, stress is not a distress. Rather than it may be in the form of a eustress. That is the indication of positive growth. Some people that consider it as in positive growth. But some people, those who perceived stress as a distress, like HIV patients or those who suffered from COVID, so they perceived spiritual distress. That is, they did not find meaning in their life or surrendered to God. And another letter in the word stress is T. T is temperance. In the Bhagavad Gita, he said it is true that the mind is restless and difficult to control. But it can be overpowered, like Arjuna, through regular practice and detachment. Those who lack self-control will find it difficult to progress in meditation. But those who are self-controlled, striving earnestly through the right means, will attain the goal. So it has, to temperance, of course, it has been always the object of positivity. तो स्पिरिचुअल आदमी जो होता है वो कंट्रोल कर सकता है, ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने आप को. तो अदरवाइज जनरली हम लोग कंप्लेन करते हैं दूसरों लोगों को, फॉल्ट को अपने, और समटाइम वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर ओन एक्शंस को, माइंड्स को, थॉट्स को. तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैव ऑलवेज बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो हर इंसान का अपना पर्सनल वर्ल्ड है. एवरी इंडिविजुअल इज हिज ओन पर्सनल वर्ल्ड. तो इसी तरह से हम लोग जो है हर को इंसान को स्ट्रेस डिफरेंट टाइप्स का होता है, समझे. तो दैट्स व्हाई वी यूज डिफरेंट. समटाइम वी यूज फंक्शनल स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू कोप विद दैट स्ट्रेस. समटाइम वी यूज डिसफंक्शनल स्ट्रेटजीज. जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि भाई गेम हार गए तो हमारे पास कुछ नहीं है, कोच को गाली देने लगे, या टीम गेम्स में दूसरा अपने पुलिस को ब्लेम करने लगे, समझे. तो दिस आर द डिसफंक्शनल स्ट्रेटजीज. फिर तो कहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ, तो कंट्रोल, हमारे टेम्परेंस कैसे कंट्रोल होगा, आपके अंदर क्वालिटीज अच्छी जनरेट होना चाहिए. जैसे जेनरोसिटी है, मॉडेस्टी है, पेशेंस रखिए, फॉरगिवनेस है, कंटेंटमेंट है, काइंडनेस है, हेल्पफुलनेस एंड ग्रेसफुलनेस. तो आपकी ये इमोशनल कंट्रोलिंग क्वालिटीज हैं जो आदमी होना चाहिए. तो इससे जो है यू कैन कंट्रोल इजिली योर माइंड. क्योंकि क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्ट्रेस. कहीं देखो, कुछ भी देखो, आपको लगेगा. तो जैसे हमने आपको बताया कि इट इज अ फैक्ट ऑफ आवर लाइफ. तो लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए, ट्रस्ट आप अपनी एबिलिटी को कीजिए, क्योंकि ये ध्यान रखिए योर ओन वर्ड इज इन योर कंट्रोल, दूसरे को नहीं है. तो हर आदमी अपने को प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, समझे. तो यानी कि इसके लिए क्या कहते हैं कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी फोकस भी, मैनिफेस्ट स्पिरिचुअलिटी विद इन इट, एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड. ये जरूरी है. तो अध्ययन है
अब ये इसी तरह का हमारे पास तीसरी स्ट्रेस में वर्ड है ले आर, तो रीडिंग स्क्रिप्चर। तो अब ये अधिया ने कोट कर रहा हूँ कि इंडियन स्क्रिप्चर्स लाइक श्रीमद् भगवतम gives deep insights into psychotherapy. कहते all unhappiness is born out of psychological condition of mind called vritas or modifications. 4 such conditions of mind are spraha, competition, asura, that is jealousy, triskara, hatred, and ahankar or ego. ये 4 चीजें ऐसी हैं, वृत्तस हैं जो हमारी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर देती, समझे। तो इसके लिए कहा जाता है कि पूर्वज लोग भी कहते थे कि स्क्रिप्चर पढ़ो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल शॉपेनहावर की दे रहे हैं, तो वो लैटिन में अपने बेड पे रात में जाने से पहले लैटिन में उपनिषद पढ़ा करता। तो कहते हैं, he said from every sentence of the Upanishads deep original and sublime thoughts arise and the whole is pervaded by a high and holy spirit. तो इसी तरह से मुस्लिम्स हैं, बहुत से लोग सूरह डिफरेंट सूरास पढ़ते हैं रात में सोने से पहले पढ़ते हैं, समझे। तो अच्छा, कुछ लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जैसे कुरान शरीफ पढ़ दी, भगवत गीता पढ़ दी आपके, और उपनिषद पढ़ दिया, बाइबल पढ़ दी। तो कहते हैं रीडिंग स्क्रिप्चर्स के क्या फायदे होते हैं? इट हेल्प्स इन कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। पॉजिटिव परसेप्शन आपका शुरू हो जाएगा जब आप करेंगे कोई, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस इन योर स्क्रिप्चर्स। सो दैट्स व्हाई दिस एस्पेक्ट रीडिंग स्क्रिप्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आया आपके स्ट्रेस में ई लेटर आया, तो कहते हैं इमोशंस एंड इट्स कंट्रोल। तो जितनी भी आजकल प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों की इट इज बिकॉज ऑफ we do not have any sort of an emotional regulation. तो जैसे दलाई लामा ने कहा, one can overcome the forces of negative emotions like anger and hatred by cultivating their counter forces like love and compassion. इस तरह महात्मा गांधी ने कहा, a man who is swayed by negative emotions may have good enough intentions, may be truthful in word, but he will never find truth. तो क्या है कि निगेटिव इमोशंस जो है ये हमारे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो निगेटिव इमोशंस में एंगर, हेट्रेड है, जेलसी है, समझे, एनवी है, समझे। तो ये जितने भी हैं, तो ये हमारे मुस्लिम्स में स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे, थिंकर थे, अल गजाली। तो वो कहते थे भाई ये these are all these spiritual diseases like envy, jealousy, hatred, conceit, malice, ये spiritual diseases। तो one should control all these। तो अब कहते हैं कि अब इसके लिए क्या है कि इमोशंस हमारे 2 टाइप होते हैं। तो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, एक निगेटिव। तो पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट कीजिए आप, जैसे ग्रेटिट्यूड है, सेरेनिटी है, जॉय है, इंटरेस्ट है, सिंपैथी है, होप है, प्राइड है, अम्यूजमेंट है, इंस्पिरेशन है, लव। और निगेटिव इमोशंस है हेट, एंगर, फियर, सॉरो, जेलसी, डिसजस्ट एंड शेम। तो कहते हैं इनको आप अंडू करो, अदरवाइज सबसे पहले आपके फिजिकल इफेक्ट्स होंगे इसके, और फिर आपके मेंटल इफेक्ट्स होंगे। तो सम ऑफ द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस सच एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट बढ़ा देगा, आपका पल्पिटेशन बढ़ा देगा, समझे। और एक्सोक्राइन रिलेटेड स्ट्रेस डिसऑर्डर भी, जैसे आपके अंदर कॉटन माउथ हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, प्रोफोज स्वेटिंग होने लगती है बहुत से लोगों के अंदर। तो ये इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। तो इसलिए कहा गया कि पॉजिटिव इमोशंस जो है आर द फ्यूल ऑफ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस भी हम लोग का बहुत ये पॉजिटिव साइकोलॉजी फिनोमेना है, जिसमें हाउ टू बाउंस बैक द सिचुएशन। तो मतलब रेजिलियंस पीपल में कहते हैं इट हेल्प्स पीपल फाइंड मीनिंग इन ऑर्डिनरी एंड डिफिकल्ट टाइम्स में कि आप कैसे कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें 4 आपको वेज बताए हैं जो इमोशंस कंट्रोल। एक तो बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ आवर इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर पीपल इन आवर लाइफ। कि कॉन्शियस हो कौन सा वर्ड जो कि कैसे, मतलब यानी कि आपको फिगर आउट करना है तो व्हाट थॉट्स accompany negative feelings
that keep swirling around our heads. तो कौन कौन सी हैं नेगेटिव फीलिंग जो आपके दिमाग आती जाती हैं और दिमाग में घूमती रहती हैं कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। फिर आप क्या आइडेंटिफाई करो सिम्टम्स को स्ट्रेस, लोकेटिंग देम इन अवर बॉडीज। तो कौन सा सिम्टम हो रहा है आपको, जैसे मैंने आपको बताया आई को पर जब स्ट्रेस होगा तो सबसे पहले वही रिफ्लेक्ट होगा, तो आपकी प्यूपिल जो पुतलियां डायलेट होने लगती। अच्छा, इस तरह से करके होता है कि क्या आपको नींद नहीं आई, बैकअप स्लीप हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपके अंदर इरिटेशन हो गया, हेडेक होने लगता है। तो इफ इट कंटिन्यूज फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन देन इट मे इन द फॉर्म ऑफ ए माइग्रेन आल्सो। फिर क्या है, डिकोडिंग द इंट्यूटिव इमोशनल थॉट पैटर्न, इंफॉर्मेशन, underlying symptoms, underlying or understanding that every illness is partly due to the negative emotion। जितनी भी चीजें हैं सब निगेटिविटी की वजह से होती है, तो ये आपको करना है। फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्ट्रेस में आपके आया स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो अब देखिए इसमें हमने आपको बताया, कोट किया है, सिद्धार्थ गौतम का कोट किया, घोषानंदा का किया, रॉबर्ट सी फ्लूर का किया कि वी कैन नॉट बी हैप्पी इन स्पाइट ऑफ आवर डिफिकल्टीज, व्हाट गुड इज आवर स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मतलब जैसे साधना आपने किया, समझे, और विजिटिंग टू होली श्राइन्स कर रहे हैं, ऑफरिंग प्रेयर कर रहे हैं, डोनेटिंग फॉर चैरिटी कर रहे हैं, लीडिंग अ पायस लाइफ, बाथिंग इन द सेक्रेड रिवर है, ड्रेन ऑफरिंग मिल्क ऑन शिवलिंग, ऑफरिंग flowers praying to God, going to religious shrine, simple tilak mark on one's forehead, offering some money to the demigods or to the deities, helping some beggar, putting on a kribati in dargah, temple or church. So these are all these spiritual practices. The majority of the Indians, particularly, irrespective of the religious faith, they are involved in doing this. तो मतलब तो क्या कहते हैं कि ये जो है मतलब इट बेसिकली रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ द माइंड। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेवलप स्टेबिलिटी एंड पीस व्हेन यू आर लिविंग इन ए स्ट्रेसफुल लाइफ। कोई ना कोई एक्टिविटी यानी कि प्रैक्टिसेस वन शुड ऑलवेज परफॉर्म टू डू इट। तो व्हेनेवर यू फेस एक्सपोज टू or perceived any kind of the stress। और फिर स्ट्रेस वर्ड में यह कहा सेल्फ रेगुलेशन। तो हमने ये बॉमिस्टर ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन इज द ट्रम्प कार्ड ऑफ पर्सनालिटी। कि आप अपने आप के, जैसे कहते हैं ना बहुत से रेगुलेशन, रेगुलेट करो अपनी लाइफ को, रेगुलेट करो, तो इसी कहता है स्ट्रेस का, इट इज ऑफन ड्यू टू रिकॉलिंग पास्ट फेल्योर्स और वरिंग अबाउट द फ्यूचर। तो इस तरह से वो एक नाम अभी याद नहीं आया, तो मतलब कि स्ट्रेस क्यों हो जाता है। तो इसमें था कि वी लुक आफ्टर एंड फाइंड व्हाट इज नॉट। तो मतलब वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, मतलब यानी को पास देखते हैं या फ्यूचर देखते हैं, या डिजायर वो करते हैं जो कि चीज अवेलेबल नहीं है। यानी कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड व्हाट इज नॉट। समझे? तो सिंपल सोल्यूशन क्या है टू कोप विद स्ट्रेस इज सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ lack of self regulation is that the root of psychological and physical stress। तो ये सेल्फ रेगुलेशन आप पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, और इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्पिरिचुअल और द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये स्ट्रेस वर्ड से मतलब कभी होता है समटाइम इवन द सोल्यूशन इज आल्सो विद इन द पर्टिकुलर कंसेप्ट्स। तो अब वो अभी हमने स्ट्रेस के आपके वर्ड स्ट्रेस में ही मैनेजमेंट के 6 आपको बताए। अब आता है माइंड। अब देखिए मैनेजमेंट का शुरू हो गया। आप यहाँ से मैनेजमेंट में सबसे पहले द वर्ड लेटर इज
M stands for mind. तो कहते हैं make haste in doing good, check your mind from evil, for the mind of him who is slow in doing meritorious actions delights in evil. Dhammapada. रोमन्स में वो एक है बी ए ट्रांसफॉर्म बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, कि आप अपने को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं व्हेन यू डू। तो फॉर दिस, इन दिस केस, इस तरह हमने आपको भगवत गीता का जैसे कोट कर रहे हैं, तो कहते हैं द अनडिसिप्लिन्ड माइंड एक्ट्स एज अवर एनिमी, वेयर इज ए ट्रेन्ड माइंड एक्ट्स एज अवर फ्रेंड। तो हमें माइंड के तो इसमें जैसे अभी आपको हमने 4 फोल्ड फंक्शंस माइंड के बताए कि मेमोरी होना चाहिए, चित्ता, डिलिब्रेशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन, दैट इज मानस, डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग बुद्धि, एंड आई कॉन्शियसनेस अहंकारा। These 4 aspects of the mind seem to be more appropriate to balance in daily life and in alleviating, reduce, यानी कि रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस को। तो पीस ऑफ माइंड जो है, सेरेनिटी है, कामनेस है, ट्रैंक्विलिटी, दैट इज वेरी मच नीडेड। तो इन मॉडर्न टाइम्स महात्मा गांधी कल्टिवेटेड हिज माइंड इन दिस वे एंड चेंज्ड कोर्स ऑफ हिस्ट्री। He broke the mighty British subjugation of India without ever restoring to violence. Spiritual people value the innate power of pure mind to guide them faithfully toward the spiritual goal of life. तो इसके लिए माइंड के लिए भी सबसे अच्छा क्या है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, there is no limit to the power of human. कभी होता हम लोग रिसर्च आती कहते हैं 80,000 when ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं, लेकिन हम लोग 10,000 भी नहीं यूज करते हैं। तो कहते हैं कि माइंड जो है, होली मदर ने भी कहा, द माइंड इज एवरीथिंग, इट इज इन द माइंड अलोन दैट वन फील्स प्योर एंड इम्प्योर। तो कब क्या हो रहा है हमें या कुछ है, ये सब दिमाग का खेल है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, तो मैं सजेस्ट लोगों को करता हूँ कि आपके मेंटल परगेशन बोलते हैं, तो मेंटल क्लींसिंग करना है। जैसे फिजिकल क्लींसिंग करते हैं ना, घर की सफाई वगैरह करते हैं, इस तरह दिमाग की सफाई करना चाहिए। क्या है मेंटल क्लींसिंग? मेंटल क्लींसिंग में क्या है कि हमारी we should discard certain outdated things from our mind and invite new stress in our life. कि एक तरह का विशेष सर्किल बनाओ कि जो दिमाग में आउटडेटेड चीजें उनको बाहर निकाल के फेंको, नई चीजें इनवाइट करो, समझो, डेली। तो ये मेंटल परगेशन है, मैंने बताई इस स्टेज को कि मेंटल फिजिकल क्लींसिंग की तरह मेंटल क्लींसिंग भी इंसान को अपनी करती रहना चाहिए। मतलब इट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डेली लाइफ। फिर स्वामी जी कहते हैं कि एक्शन इज एक्सटर्नल मोशन एंड ह्यूमन थॉट इज इंटरनल मोशन। परसेप्शन बिगिंस विद द माइंड व्हिच इज सबटल मैटर। अच्छा, इन्होंने स्वामी जी ने भी कहा, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन अल्टर देयर लाइव्स बाय अल्टरिंग देयर एटीट्यूड ऑफ माइंड। क्या आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। तो इस तरह से हमने और भी बहुत सी बताई आपको, इनका कोटेशन दिया है तमाम खासतौर से। फिर मैनेजमेंट में एक लेटर आया ए, एक्टिविटी। तो कोट है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक्शंस आर गवर्न्ड बाय इंटेंशन। तो तुम्हारी नियत क्या है, उसी हिसाब से एक्शन गवर्न होते हैं। तो एक्टिव, तो हम लोग क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस बेसिकली दिस स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो therefore it is necessary one should be active or adopt active life. तो ऐसे
ऐसे ग्योली ने क्लेम किया दैट ऑल एक्टिविटी विच ड्राइव्स ह्यूमन बीइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। जब होता है फिजिकल भी डेवलपमेंट होता है एक्टिविटी में, आप इमोशनल भी होता है, मेंटल भी होता है, इंट्यूशनल भी होता है, सोशल भी होता है और स्पिरिचुअल भी होता है, हर किस्म की। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन, तो एक्टिविटीज ऑफ एनी काइंड जो है होगा आपका, वो वेकअप करेगा सोल को, आत्मा को जगाएगा आपका, समझे, ये ध्यान रखिए। तो दोज हु डू नॉट हैव पैशन फॉर वर्क जनरली दे फील स्ट्रेस एट वर्क। बहुत से लोग कहते रहते हैं अरे यार कोई काम ही नहीं मेरे पास, समझे। तो वो क्या है, मतलब दे डू नॉट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स। तो जैसे हमारे यहाँ एक prophetic tradition भी है कि one hour of meditation to work is better than 70 years of prayer. तो यानी जो भी काम करें one should devote his mind और तो कहते हैं एक्टिविटी जो है ये डेवलप करता रेजिस्टेंस हमारे अंदर टू स्ट्रेस। और तो यानी कि क्या, इनएक्टिविटी शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड बाय ऑल मींस टू मैनेज स्ट्रेस। और एक्टिविटीज किससे गवर्न होंगी, आपके गोल्स से और कमिटमेंट, उनसे एक्टिविटीज आपकी गवर्न करते हैं। तो कहते हैं मैन हु डज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क अकम्प्लिशेस सो हाई, तो इट इज द यू स्ट्रेस फॉर, ये उसके लिए इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ है। आप जितना टाइम डिवोट करोगे, जितना काम करोगे या कुछ, इट हेल्प्स यू इन मैनेजिंग स्ट्रेस एज वेल एज टू कोप विद दैट स्ट्रेस। तो इसके लिए आप एक्टिविटीज में जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस, ये फिजिकल अप्रोच टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, हाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग है, हठ योगा है, और एनी काइंड ऑफ योगा that is so called the asanas, that is more important, समझे। तो इसी तरह से क्या न्यामाज भी होते हैं, मेंटल एक्टिविटी भी होते हैं, मेंटल एक्सरसाइज न्यामाज। तो कहते हैं एवरी एक्टिविटी इज सेक्रेड एंड डिवोशन टू गॉड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, समझे। कि हर एक्टिविटी को सेक्रेड समझो, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। By performing any activity consciously, आत्मविवेकी होने पे करोगे तो आपको इम्प्रूव करेगा, स्ट्रॉन्गर, और इम्प्रूव करेगी आपकी स्ट्रेंथ, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करेगी और मेंटल स्ट्रेंथ भी आपका इम्प्रूव होगा कोई भी एक्टिविटी। अब ये मैनेजमेंट में थर्ड लेटर आया एन, तो एन स्टैंड्स फॉर नॉवेल्टी सीकिंग। तो व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग न्यू, I feel others comfortable on there. तो कुछ लोग हैं भाई ठीक है चलो जैसा चल रहा चल रहा बिजनेस, कुछ लोग होता नहीं, हर दिन नया दिन कुछ ना कुछ करना है। तो that motivates us to seek for the new. What lead us to transform? The research in the area of stress management may give insights concerning the above question. तो रोज लोग है कि हमें आज क्या करना, तो novelty seeking has not received attention in the stress and health literature. तो कोई ना कोई नया काम में हमें, तो novelty seeking behavior will not only improve your human resource management in workplace, but also help creative professionals to manage their stress. So through novelty seeking, we can feel relieved, relaxed, and happy about self. तो इससे क्या है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है। जब क्रिएटिविटी होगी तो आपके अंदर ओरिजिनलिटी होगी, या क्रिएटिविटी का और भी कंपोनेंट है लाइक फ्लेक्सिबिलिटी हो गया अंदर आपके अंदर डेवलप होगी। तो इससे
जहां मोनोटोनस लाइफ होगी, एक ही किस्म का आप काम करते रहेंगे, चाहे रिसर्च होगा या कोर्सेज एक ही जो कोर्स ले लिया उसी को 10 साल पढ़ाए चले जा रहे हैं, तो आपके अंदर स्ट्रेस होना ही है। और फिर मतलब देयर इज नो सच क्वेश्चन राइजेस अबाउट इम्प्रूवमेंट इन योर टैलेंट और स्किल। फिर आया मैनेजमेंट में ए लेटर आया, एट्रीब्यूशनल स्टाइल। तो एट्रीब्यूशनल स्टाइल में क्या है कि आपकी एक्सप्लेनेटरी है, आपके हैं एट्रीब्यूशनल स्टाइल है, यानी कि आपके अंदर ऑप्टिमिज्म है कि नहीं, होप है कि नहीं है, समझे। तो इससे भी मैनेजमेंट होता है। तो जैसे कहते हैं इंटरनल, हर आदमी का अपना एक इंटरनल ग्लोबल स्टेबल फैक्टर है फॉर एक्सप्लेनिंग नेगेटिव इवेंट्स। They constitute the risk factor for the infection of helplessness, deficiency. तो रोल ऑफ एट्रीब्यूशनल स्टाइल्स वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में बहुत जरूरी है, मतलब कोप करने के लिए। कि मतलब आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक हैं, और आप की जो है एट्रीब्यूट के आप के फ्रेमवर्क क्या है एट्रीब्यूशन का इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोल स्ट्रेस। तो कुछ लोगों के अंदर होता है कि आप जैसे एग्रेशन को मीट आउट करें या कुछ, तो आप एक्स्ट्रा पिनिटिव हैं एग्रेशन में, यानी कि आप ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को, ब्लेम और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। या इंट्रोपिनिटिव है आपका एग्रेशन है कि आप अपने आप को सेंसर करते हैं। तो आपका क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टाइल यू हैव अडॉप्ट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फिर ग्रेटिट्यूड, देखिए जी सा आया। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी कोट किया, दाऊ दैट हैज गिवन सो मच टू मी, गिव वन थिंग मोर ग्रेटफुल। अब हम लोग क्या है, वी से मोर नंबर ऑफ टाइम्स टू सॉरी टू अदर्स रादर देन बी ग्रेटफुल टू अदर्स। थैंकफुलनेस नहीं। तो हमारे इस्लाम में कहा गया ग्रेटिट्यूड इज हाफ ऑफ पेशेंस। सब्र का जो है आधा ईमान का हिस्सा ग्रेटिट्यूड है, समझे। तो जैसे हमने फिलासफर सेनेका को कोट दिया है, इट इज अनदर्स डिफॉल्ट इफ ही बी अनग्रेटफुल, बट इट इज माइन इफ आई डू नॉट फॉरगिव। टू फाइंड वन थैंकफुल मैन आई विल oblige a great many that are not so। तो हम लोग जो है शुक्र नहीं अदा करते। ग्रेटिट्यूड टू गॉड होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड टू सेल्फ भी हो, ग्रेटिट्यूड टू अदर्स भी, दैट इज मच। जैसे सिसरो को मैंने कोट किया, ग्रेटिट्यूड नॉट ओनली इज द सोर्स, नॉट ओनली एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द वर्च्यू, बट द पेरेंट ऑफ ऑल अदर्स। अब जैसे ये खास तौर से कोई परेशानी होती है, कुछ है, तो कहते हैं रिमेंबर गॉड इन टाइम्स ऑफ परसीव्ड डिस्ट्रेस एंड होपलेसनेस। When such events come in our lives, like family, relationships, career, health, remember that we should be thankful to God. He is the only one who can help us to overcome stressful challenges. तो expression of gratitude जो है is a virtue, quality है। कि कहिए हमेशा, चाहे आप दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड हो या कुछ। अब आजकल जो है मेटलिस्टिक दुनिया में हम लोग है, we do not thank to the others, or expression of gratitude is totally missing। सोचते क्या रे यार, ये तो उसको करना चाहिए था, भाई we should say thanks or something like that। तो कहते तो gratefulness has been defined as willingness to recognize that one has received a valuable positive outcome from another individual's kindness। तो कभी कभी जो है क्या कहते हैं, जैसे इमंस को हमने कोट किया, बीइंग ग्रेटफुल इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट देयर आर गुड एंड एंजॉयबल थिंग्स इन द वर्ल्ड। जिस तरह सिनाइडर लोपेज ने कहा, ग्रेटिट्यूड कैन आल्सो कम फ्रॉम नॉन ह्यूमन एक्शंस और इवेंट। फॉर एग्जांपल, मेनी पीपल एक्सपीरियंस ग्रेटिट्यूड फॉर सर्वाइविंग ट्रॉमेटिक इवेंट्स और गेटिंग थ्रू क्राइसिस। ठीक है भाई, देखते कोविड में
आखिर में क्या हुआ, जब देखा कि कोई हमें डॉक्टर्स की हेल्प या वैसे कुछ नहीं, हमने क्या किया, रिमेंबर टू द गॉड, कि चलो सरेंडर किया, सरेंडर बिफोर द गॉड, कि चलो वही अब इसका निवारण करेगा, वही हमारा बीमारी का इलाज करेगा। तो ये मतलब कहते हैं इट इज अ काइंड ऑफ द thinking or positive attitude of your mind to experience or be grateful to God while experiencing traumatic events or traumatic stress linked with the COVID or the other diseases. So in general, people are grateful, who are grateful perceive the world, what life is offering rather than what life is denying to them. तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भाई ठीक है, हमें जो मिल रहा है वो ठीक है, कि ना कि हम उस जो हमें नहीं मिल रहा है तो शुक्र अदा करो। मतलब यानी कि कहते हैं हम लोग क्या, जैसे इस्लाम में कहा गया नफ्स मुतमइन्ना, दैट इज सेटिस्फेक्शन टू द सेल्फ, सेल्फ से सेटिस्फाई हो। तो इस तरह से ये रिसर्चेस भी हैं जिसमें कहा कि ग्रेटफुल हैज मेनी साइकोलॉजी, यानी कि ये पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ाती है, इमोशन, मोर एनर्जी, इंथुजियाज्म एंड अटेंटिवनेस, और फिजिकल भी बढ़ाती, इंक्रीज्ड एक्सरसाइज है, बेटर स्लीप है, फ्यूअर इलनेसेस एंड इंटरपर्सनल भी है, फीलिंग मोर कनेक्टेड एंड लेस लोनली एंड आइसोलेटेड। So these are all the different kinds of the physical or interpersonal or the psychological benefits associated with the gratitude. तो फिर जैसे हमने ये बताया कि many religious people, religions emphasize that people should show thankfulness and gratitude for their lives. तो अब आजकल हम लोगों का क्या है कि साइकोथेरेपी जब करते हैं तो उसमें पेशेंट से कहते हैं कि आप अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट तैयार करो, दैट इज द काइंड एक्ट ऑफ काइंडनेस ईच डे। आपने क्या किया, दूसरों के लिए क्या किया है? तो और कुछ लोग कहते हैं encourage to write 3 things each day for each they are grateful. तो उसमें हुए तो ग्रेटफुल टू अदर्स कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें हुए आप, ग्रेटिट्यूड टू गॉड किसमें हुए, एक्टिविटी दैट इज मोर मैटर फॉर यू। तो अब हमने इसको जैसे बताया कि क्लाइंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट a detailed letter of gratitude to someone whom he or she is never properly thanked, and then to deliver later the person to the intended recipient. जैसे पहले वो आपके लेटर लिखने का रिवाज था, तो पेरेंट्स लिख रहे हैं या बच्चे लिख रहे हैं, तो उसमें उनका मेन था देयर इज ए सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द पेरेंट्स, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू अदर्स। अब वो सब चीजें एज द टाइम comes or when we are living into so-called materialistic society, we forget each and everything. That is how be thankful or grateful to this, or in terms of the reflection of the benevolence. Attitude ही नहीं रहेगी हम लोग अंदर, समझे? तो और we do not know how to express our positive emotions about the past. तो इसी तरह से in comparison to finding forgiveness, being more grateful does not seem to be difficult for most people, though it does require conscious effort. तो forgiveness को believe कहा जाता है, it is a sign of mental health है आप अगर कर रहे। तो he who express gratitude to God at the time of distress and seeks the path in coping with his stresses from him achieves satisfaction, true prosperity from God Almighty, provided that he carries supplication to him. In addition, his faith is strengthened and his conviction increases. अब
जैसे वोहरा एक ये फिलोसफर हैं, तो इनको मैंने कोट किया, उन्होंने कहा कि those who have practiced gratitude tend to be more creative, bounce back more quick through adversity. यानी कि क्या हुआ, जैसे रेजिलियंस जिसको हम कहते हैं, have a stronger immune system and have a stronger social relationship than those who do not practice gratitude. ये इन्होंने कहा है। अच्छा, अब इसके बाद आपके कंसेप्ट आया मैनेजमेंट में ई, तो कि मतलब एक्सपीरियंस क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी में डिवाइड करती है हमारे पास टू टाइप्स, प्योर एंड अप्लाइड। अकॉर्डिंग टू बोश, प्योर स्पिरिचुअलिटी refers to silent, unbounded and inner experience of self-awareness. तो ये किनके अंदर होता है? sages, saints, spiritual gurus, prophets, उनके अंदर था कि inner experience करते हैं। On the other, applied spirituality refers to the domain of practical applications and measurable outcomes. यानी कि जो आए हमारे इनर एक्सपीरियंस से और स्पिरिचुअलिटी रिफ्लेक्ट हो रही, वो उनका एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो मेडिटेशन में क्या है, फॉर इनर एक्सपीरियंस, इट इज ए वाइडनिंग फॉर्म ऑफ स्पीच है। तो इस तरह प्रेयर है। तो एवरी इंडिविजुअल इज हिज ओन पर्सनल वर्ड and experience different things, and they also perceive different and express differently about them. तो कहते हैं एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट मोर। जैसे पहले लोग, पुराने लोग कहते थे तो भाई वो देखो तुम्हारा किसी को परखते हैं हम लोग, तो अपने वो एक्सपीरियंसेस देखो, what kind of experiences you shared into that. That is more important. फिर कहते most of us do experience life as a stressful. कुछ लोग पर अरे यार जिंदगी में क्या रखा है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं हमारे, हम तो कोई नया पर लगता ही नहीं। तो कहते पर्सनल, फैमिली रिलेटेड, जॉब रिलेटेड स्ट्रेसफुल, such as the loss of a loved one, divorce, fear of illness, and the loss of a job seems difficult to cope with it. तो I think experience is a feeling in response to a challenge. यानी कि आपका तजुर्बा क्या करता है, that is more important. अब कुछ लोग हैं, हम लोग ज्यादातर अपनी बातें सब दूसरों लोग शेयर कर देते हैं, अपनी समझते कि वो तो कुछ ठीक है। there are some people वो जो बहुत ज्यादा वेल विशर होते हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बताते हैं सब कुछ है। But anyhow, but in every case, you may say it totally depends on you, with that what you experience, because every individual has his own personal world. What you experience is not necessary that the others may also perceive or experience the same things. So, but within that, whatever the things you experience, within that you observe something new. जरूरी नहीं जो दूसरों को हो रहा है वो आपको भी हो। यू में सच ओन सॉल्यूशंस डिफरेंट। तो कहते हैं पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है कैन लीड यू टू इनर हेवन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्सपीरियंस द थिंग्स, हेंस वाइज वे ऑफ कोपिंग द स्ट्रेस इज एक्सपीरियंसिंग एंड परसीविंग वंस लाइफ पॉजिटिवली। तो हम लोग क्या है कि so with greater experience, it is possible to transform our distress into eustress. Apply experience in your daily life. क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी जिंदगी में, क्या आपको वही यू मे एक्सपीरियंस द सेम थिंग्स से फॉर एग्जाम्पल टुमारो। तो इसीलिए शैली ने ये बात कही कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड व्हाट इज नॉट। हम उन चीजों को डिजायर करते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनको डिजायर करते हैं, और पास्ट और फ्यूचर को देखने लगते हैं।
तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, अपने एक्सपीरियंसेस को डेली लाइफ में देखिए। फिर आप आइए मैनेजमेंट में एम अनदर कहते हैं मेडिटेशन। देयर इज नो मेडिटेशन विदाउट विजडम एंड देयर इज नो विदाउट wisdom without meditation. When a man has both meditation and wisdom, he is indeed close to nirvana. ये गौतम बुद्धा ने कहा। तो मेडिटेशन, अब आजकल बहुत बातें चल रही हैं कि तो मेडिटेशन क्या स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज है फॉर मेंटेनिंग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द माइंड एंड डिसिप्लिन ऑफ द हार्ट। अब बहुत सी हम लोग ट्रीटमेंट में भी आजकल माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात करते हैं हम लोग, समझे। तो मेडिटेशन के भी बहुत से डिसिप्लिन ऑफ द माइंड और डिसिप्लिन ऑफ द हार्ट दोनों की बहुत जरूरी है। यानी कि क्या है, मेडिटेशन जो है आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन डेवलप करता है, इंसान का अंदर डेवलप करता है। तो दिस एक्सरसाइज इज नीडेड बाय द पर्सन बिकॉज इट विल हेल्प इन नॉट ओनली इन ओवरकमिंग स्ट्रेस बट आल्सो इन द अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन एंड यूनिटी, the realization of the highest wisdom and the gaining of divine illumination. वो कैसे, ये परफेक्शन या यूनिटी कैसे, यानी कि हमारे इंसान में 3 टाइप के ट्रायून एस्पेक्ट है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट और सोल। लेकिन हम आजकल जो है, मैं 4 टाइप की बात करता हूँ। तो मैं बॉडी, माइंड, स्पिरिट, इसके अलावा हार्ट की बात करता हूँ। स्पिरिचुअल हार्ट, दिल आपका कैसे तो मेडिटेशन इज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन एलिवेटिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। बहुत सी सैकड़ों स्टडीज है। Moreover, it also helps in deep and regulation of breathing, and person can be free from diseases of self, existential frustrations, which lead to feeling of security, inferiority, meaninglessness, despondency. तो बहुत ज्यादा है। तो वेदांता को हमने कहा कि मेडिटेशन इज नॉट ओनली फॉर द होली पीपल बट इट इज फॉर ऑल। जैसे योग को कहते हैं ना, योग को भी तो इस तरह से मेडिटेशन का भी, अभी मेडिटेशन में जैसे चलो हम लोग जैसे मुस्लिम से तस्वीर मेडिटेशन भी करते हैं, चांटिंग 99 नेम्स ऑफ नाम, इस तरह से मंत्रा मेडिटेशन भी होती है, दैट इज टू से नेम like Om, because it purifies the mind and heart and counteracts negative thoughts. तो हर मंत्रा का अपना है, तो वो इसमें भी जैसे मोम का इस तरह कुछ गायत्री मंत्र करते हैं। तो वट एवर द मंत्रा और द होली वर्ड्स you take with regard to taking or doing meditation, तो कहते हैं सभी के लिए, मतलब ये नहीं कि खाली एक गुरुओं की और स्पिरिचुअल और रिलीजियस गुरुज के, एवरीबॉडी वन शुड प्रैक्टिस। तो जैसे योगा सूत्रास में बताया, पतंजलि में कहा गया, आफ्टर द रिपीटिशन ऑफ ओम द स्पिरिचुअल सीकर शुड हैव a course to meditation. Meditation he should again take to repetition. Through the perfection of repetition and meditation, the supreme spirit becomes manifest. मतलब एक बार नहीं आपने कह के छोड़ दिया 100 रुपया कर दी, मतलब यू रिपीट। जैसे सूफीज में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, रिपीट इट। तो कहते हैं all the obstacles cease to exist by virtue of devotion to the Lord, and then follows for him the perception of his own real nature. He comes to realize that just as the Lord is a spirit, pure, bliss, free from troubles, so also the spirit which functions through the mind. तो कहते हैं ये वेदांता से रिपोर्ट किया कि पतंजलि सूत्र में इसकी
अहमियत बताएगी। तो इस तरह स्वामी जी डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ परफेक्ट कंसंट्रेशन। तो इसको भी हम लोग कहते हैं कि हाईएस्ट एवरी मेडिटेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सुपर कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियसनेस और वेदांतिक टर्म में हम इसको बोलते हैं तुर्या। तुर्या मीन्स द फोर्थ लेयर, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, और सुपर कॉन्शियसनेस इट डेवलप्स। तो कहते हैं इन परफेक्ट कंसंट्रेशन द सोल बिकम्स एक्चुअली फ्री फ्रॉम द बाउंड्स ऑफ द gross body and knows itself it is. तो कहते हैं कि greatest state है meditation, looks upon things and sees things, not identifying itself with anything else. कोई सी चीज जब करें तो आपको बहुत परफेक्ट कंसंट्रेशन। इस तरह से कंप्लीटेड वर्क में स्वामी विवेकानंद जी ने आज कहा कि whatever one wants that comes to him, power and knowledge are ready there. The soul identifies itself, which is powerless. Matter thus weeps. It identifies matter. यानी क्या है कि there is nothing possible to such a free soul. No more birth and death for him. He is free forever. Yeah. कभी क्या होता है कि आप करते हैं, मतलब this matter says in the beginning you may feel difficulty doing meditation. तो उसमें भी एक तो कंसंट्रेटिव मेडिटेशन होते हैं और एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो बिगिन विद जस्ट यू सिट एंड क्वाइट calm conditions and remember God or something like that. But anyhow, your conscious effort is required, 10 to 15 minutes minimum, depending on your orientation and your purpose of doing meditation, and of them, like in the case of the students and the teachers also should perfect meditation, or it is a kind of the spiritual exercise. The neglect of concentration on the higher self undermines our capacity for it. Holy Mother Sarada Devi says, as one gets the fragrance of a flower by handling it, so does one get spiritual awakening by constantly thinking of God. So this is the true meaning and spiritual power of thought, which dispels all the ignorance of our real nature is the cause of our misery. तो कोई भी चीज आएगी, कुछ भी आए कि आप इसको, मतलब one should be more conscious about it, how to deal with it, because every problem's solution is with you. Sometimes we take the help of the counselor, the psychologist, how to deal with it, and but anyhow, every moment you should be prepared for it. Get that the self healing, it matters. फिर हमने बहुत से तमाम बताए, आपके अनापना बताया, डेवलप कैसे कंसंट्रेशन करते हैं। हमने अनापना can and before that conducting meetings, deliberation, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपना मेडिटेशन से पहले। फिर ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन का आजकल बहुत यूज होता है कि पर्पस ऑफ such type of meditation is to look inward to reach a state of inner spiritual bliss. एक तो आउटर है, वही है। यहाँ पे भी कहते नहीं कि जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल ब्लिस की बात करते तो इट इज कॉल्ड आनंदा, और इन अल-ग़ज़ाली's term it is known as सादा, al-sada, SADAH. That is the say happiness. Generally we are concerned about the happiness into this world, into the physical world, but what about the happiness or ananda or bliss at the
in the other word. In this regard, mindfulness meditation, one should practice it because it cultivates mental clarity and focus. Mindfulness has been linked to learning to sit by the bank of the river of emotions and letting them flow, coming and going without getting caught up in them or in the occasional torrent. तो काबाज जिन को भी मैंने आपको बताया, इन्होंने मेडिटेशन के बहुत से बताया है कि ये परफॉर्मेंस है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी भी डेवलप करती है। और आजकल तो जो है इट इज बीन यूज्ड in recent times to deal with the mental health problems like anxiety, depression, stress, इनको सबके लिए यूज होती है। अब मैनेजमेंट ME आया लेटर, तो कहते इरेडिकेटिंग डिजायर। अब देखिए बृहद्र नायका उपनिषद में कहा गया, यू आर व्हाट योर डीड ड्राइविंग डिजायर इज, एज योर डिजायर इज so is your will, as your will is, so is your deed, and as your deed is, so your destiny. Aristotle ने कहा, bring your desires down to your present needs. Increase them only when your increased means permit. जैसे पुराने लोग हम लोग क्या कहते थे, भाई उतने ही पैर लाओ जितनी बड़ी चादर हो। तो डिजायर्स को इरेडिकेट करो, वो बढ़ती जा रही है। तो एंडलेस डिजायर्स जो है lead to endless restlessness and lack of fulfillment. तो materialism जो है creating the tremendous stress at home and in the workplace. The spirituality suggests a unique path for managing stress. When we are inspired with the spiritual goal of all desires fade, the eradicating desire is possible only when our life's goals are realistic. हो आपके जब लाइफ गोल समझे, तो उसके लिए आपको हायर वैल्यूज अपनी डेवलप करना पड़ेंगे, स्ट्रेंथ्स डेवलप करेंगे इन ऑर्डर टू इरेडिकेट डिजायर। तो क्यों एंडलेस डिजायर्स लीड टू एंडलेस रेस्टलेसनेस एंड लैक ऑफ फुलफिलमेंट। तो व्हेन वन इरेडिकेट्स डिजायर्स फ्रॉम विद इन, स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड। अब नीड्स की बात आई एन, तो मेरा ये कहना है वी हैव इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू मीट द नीड्स, we should set new challenges of life. So unmet needs, which leads to vices and insecurities, are symptoms of stress. यानी कि जितनी ख्वाहिश है अपनी बिल्ड करो बैलेंस, समझे, अदरवाइज यू मे फेस डिफिकल्टी इन कोपिंग विद द स्ट्रेस। तो कहते हैं नीट डायमेंशन इज पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स स्पिरिचुअलिटी एज इट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल्स कोपिंग बिहेवियर टू मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल। तो वी कंसीडर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ नीड should be viewed as the coping strategies. लास्ट है थॉट्स मैनेजमेंट, थॉट्स। इसमें भी मैंने आपको M.K. गांधी को कोट किया, always aim at complete harmony of thought and word deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well. If you realized how powerful your thoughts are, you would never think a negative thought. Peace. यानी कि पॉजिटिव थॉट्स। तो हम लोगों के क्या है कि पॉजिटिव थॉट्स आर बेस्ड ऑन अवर इनहेरेंट डिविनिटी आर एसेंशियल टू स्ट्रेस। पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जब आजकल बात की जाती, यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दो चीजों से रिकॉइल करो कि डूइंग इज वेरी गुड बट दैट कम्स फ्रॉम थिंकिंग। फिल द ब्रेन देयरफॉर विद हाई थॉट्स, highest ideas, place them at night before you and out of that will come great work. जब आप सोचोगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव चीजें आएंगी। तो थॉट्स जो है डायनेमिक रोल प्ले करता है हमारे स्पिरिचुअल और नॉर्मल लाइफ में। Our thoughts make up our whole being. जैसा सोचोगे वैसी बनोगे। It colors the mind. ग्रेटेस्ट पावर होती है हमारे ओवर लाइफ
तो स्वामी विवेकानंद को हमने इसमें भी कोट किया, वी आर व्हाट एवर थॉट्स हैव मेड अस, सो व्हाट टेक अप व्हाट यू थिंक, वर्ड्स आर सेकेंडरी, thoughts live, they travel far. Each thought we think is tinged with our own character, so that for the pure and holy man, even with the yeast and abuse, will have the true star of his own love and purity and do good. ये completed verse है स्वामी विवेकानंद। तो वो तो बहुत दूर तक जाते थॉट्स, समझे? They live and travel far. जैसे स्वामी विवेकानंद की देख लिए थॉट, देखिए गांधी जी के थॉट देख लिए, अभी तक सब उनके प्रिंसिपल्स देख लिए, नॉन वायलेंस का, हिंसा का, सत्याग्रह का, स्टिल इट इज रिलेवेंट। कहते हैं स्पिरिचुअल थॉट्स टीच अस टू डिस्क्रिमिनेट एंड इंपेल अस टू सर्च फॉर द गुड एंड बैड। बर्नार्ड रसल ने कहा, द पावर ऑफ थॉट इन द लॉन्ग रन इज ग्रेटर देन एनी अदर ह्यूमन पावर। इस तरह स्वामी जी ने भी कहा, व्हाट वी थिंक दैट आवर बॉडी बिकम्स, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड बाय थॉट एंड thus we are manufacturer of our own lives। कि अपनी जिंदगी तो हम ही खुद ही बनाने हैं, जैसे जैसे सोचो वैसे बनेगा, समझे? और जहाँ निगेटिव सोचते हैं, लेकिन आजकल दुनिया में क्या है, हम लोग निगेटिव ज्यादा चीजें सोचते हैं, समझे, rather than to the positive thoughts। तो भाई जब सोचोगे नहीं, पॉजिटिव सोचोगे नहीं, तो करोगे ठीक क्या? तो that's why more than any other element, thought has the greatest significance in human life, whether it relates to secular or spiritual end। तो हमेशा अच्छा पॉजिटिव था डेवलप करेंगे तो आपका उसी टाइप से करेक्टर भी डेवलप होगा। पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव करेक्टर भी डेवलप होगा। अरबिंदो को भी बता दें आपको, उनका that the mind inhales and exhales thoughts as do lungs, the air we breathe। Swamiji says, few understand the power of thought. If a man goes into a cave, shuts himself, and thinks one really great thought and dies, that thought will penetrate the walls of that cave, vibrate through space, and there a human race, such is the power of thought। जैसे विक्टर फ्रैंकल एक हमारे यहाँ साइकोलॉजी एक्सिस्टेंशियलिस्ट थे, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को नाजीज कैंप में मरते देखा गैस चैम्बर, बट ही डेवलप्स पर्पस इन लाइफ, मीनिंग इन लाइफ, उन्होंने डेवलप की एंड ही सर्वाइव्ड। तो ये आपकी सोच है, समझ कि वो चीजें ऐसी सिचुएशन पे भी, मतलब पीपल दे लिव्ड और दे सर्वाइव टू दिस वर्ल्ड। तो कहते हैं एवरी विशेष थॉट प्रोड्यूसेस स्ट्रेस। जितना निगेटिविटी सोचते रहो या कुछ करते रहो वही हो जाएगा। तो कहते हैं कि थिंक गुड थॉट्स, डज गुड वर्क्स एंड यू विल बी इन ए फंक्शनल कोपिंग इन स्पेड ऑफ ए स्ट्रेसफुल स्टेट में नहीं रहोगे आप। तो कंक्लूजन में देखिए, हमने आपको ये मॉडल बताया है, या हमने इस टाइप के डेवलप्ड 14 to 15 analytical models based on the world spirituality, how to understand and explain spirituality with special reference to Hinduism and Islam, and 8 or 9 analytical based on the word happiness. Most of them have already published and some are the international press also. So I enjoy in developing novelty seeking through interpreting the words like stress ko humne kya, social support, temperance, reading scriptures, emotions and its control, self-regulation, spiritual practices, similarly mind, activity, novelty seeking, attribution styles, gratitude, experience, meditation, eradicating desires, needs and thoughts. These are continuously influencing our coping behavior and we are being influenced by this psycho, spiritual and social strategies. तो क्या है कि देखिए इसी दो वर्ड्स में स्ट्रेस और मैनेजमेंट में ही आपकी मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट है यू कैन सर्व। तो हमने आपको जितनी सजेस्ट की है तो मतलब I'll improve your
स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग से मतलब हमारा रिलीजियस भी यूज होगी और आपकी एग्जिस्टेंशियल वेलबींग भी होगी। तो वी शुड बिगिन टू एलिवेट स्ट्रेस। आप रिड्यूस करो ऑल प्रॉब्लम्स, क्योंकि जितनी भी दिमाग का कहते हैं फतूर है हमारे क्रिएटेड, सब हमारी माइंड में होती है, थॉट्स में होती है और डीड्स। तो our reactions to them leads to stress. So stress exists subjectively in his mind. They have no valid objective existence. So one can manage his stress through adoption of positive attributional styles. Messages हमने दो दिए हैं आपको. Attainment of knowledge and doing practice are the goals of spiritual man. If we cannot remain happy in spite of stress, what good to us is to perform spiritual practices. We must improve the spiritual quality of mind and thought. One who performs spiritual practices like meditation, prayer, reading scriptures, forgiveness, confession, yoga, we can prevent and cope stress with pure heart. Nothing else compares to such practices. Thank you. Thank you very much. Now it is open for discussion. Thanks. So those. Thank you. Thank you. Wonderful lecture, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. तो Thank ये you, जो sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हम आपको टेक्निक्स बता दिए हाउ टू डील विद। और Thank you, sir. थैंक यू। जरूरी नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी यू ऑलवेज यूज दिस, यू कैन यूज सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो, बट एनीहाउ most of these techniques are very much embedded in our culture. Sir, namaskar, sir. Namaskar, sir. अकबर साहब नमस्कार। जी हाँ है सर वोट फॉर थैंक्स देने के लिए मुझे कहा गया था, तो उसको मैं दे दूं थोड़ा सा। Before it, I would like to take a question, sir. जी। Sir, I want to know in present scenario how peer pressure and social comparison, especially in adolescent, those who are preparing for NEET and Z examinations, civil services examinations, how the peer pressure and social comparison is increasing day by day, and it's creating a huge stress over our adolescent, and how psychosocial strategies can help in it. Thank you, sir. And what steps and measures should our government take to reduce these stresses from our kids? Definitely, not only the peer pressure, even the parental pressure is also there. Day by day, the competition is increasing. बढ़ता चला जा रहा है और and moreover, इसके लिए the best studies they should use certain individual strategies to deal with such type of strategies. क्योंकि ये तो as the जैसे जैसे टाइम अप्रोच होगी उतना ही और ज़्यादा ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लोग क्या है कि majority of the students basically they put pressure as well as they give more or you may say give more you may say so called the pressure as well as the stress that perhaps only the study matters, hardly they think about their own personal well-being. अपनी उसकी बात ultimately those particularly those who are the dropout cases, it affects their mental well-being also. उनकी mental well-being भी असर कर जाती है जब नहीं लोग को कर पाते हैं। तो कितना हर आदमी के every individual is his own capacity, हर को अपनी खुद एनालाइज करना कि हम कितना टाइम डिवोट करके कितना कर सकते हैं कि कंपटीशन वुड ऑलवेज बी देयर। तो यहाँ कंपटीशन competing to the self, that is more important, कि हम कितनी चीजों को कैसे गोल को हम अपना मीट आउट कर सकते हैं, that matters. तो वो अच्छा। और फिर अब तो कुछ जब भी हम लोगों में
पेरेंट्स में भी आ गया कि we allow our children to deal as well as to set their own goals और aspirations. उनको ये बताने की जरूरी है कि देखिए कोई भी हो आपके चैलेंजेस हो, कोई भी आपके गोल्स हो और ये सोच के चलिए टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेशंस. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मोटिवेशनल काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि बच्चों को बताएं कि भाई देखिए क्या चाहिए और कुछ टाइम आप अपनी फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए भी डिवोट करें. देन यू कैन इजीली कोप विद इट. तो वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये स्टडी करते रहते हैं बच्चे और उस पर कोई स्ट्रेस ही नहीं देते हैं कि भाई इनको भी हेल्थ का भी है. तो अल्टीमेटली आप ये देखिए कि चाहे डॉक्टर्स में देखिए या कुछ जितने प्रोफेशनल्स हैं मतलब उनकी जो है वेलबींग है, हेल्थ जो है गलती चली जाती है एक सर्टेन स्टेज पे. पहले लोग भी करते थे, ऐसा बात नहीं पहले लोग नहीं पढ़ते थे या नहीं था तो उस टाइम में, बट सो कॉल्ड कंपटीशन जो है इट इज डैमेजिंग टू ए ग्रेटर एक्सटेंट इन द सेंस दैट कि हर आदमी चाहता है कि हम ही मतलब जो है ठीक है एक ही टॉप करेगा या कुछ क्वेश्चंस आएंगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि कॉम्पिटिंग टू द सेल्फ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. कि ठीक है हमने जितनी हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, जितनी अंदर हमारे अंदर एबिलिटी है, अकॉर्डिंगली वी शुड वर्क हार्ड. समझे, ये नहीं कि दूसरा कैसे हो जाए और मैं निकल जाऊं उससे ज्यादा, हार्डली दैट मैटर्स. अच्छा अब तो अगर वैसे देखा जाए भाई ठीक है कंपटीशन है सब कुछ, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी देखिए या आप वो क्रिएटिविटी देखिए तो उस लेवल की है ही नहीं. सब मैकेनिकल चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं एवरीथिंग इज फिट इन विद इन द सो कॉल्ड द पिजियन होल. समझे, गैजेट में है, मतलब हार्डली गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज द चिल्ड्रंस पोटेंशियल. वो थिंकिंग है ही नहीं, उतनी चीजें नहीं आ रही है. वो आजकल देखिए AI का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी. तो दैट मैटर्स. तो इस कंपटीशन के दौर में जो है बच्चे को तो हमें यानी पेरेंट्स की मेन ड्यूटी है कि वी शुड आस्क आवर चिल्ड्रन टू डिवोट सम टाइम on in observing or performing certain spiritual exercises. मेडिटेशन है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स है, पॉजिटिव थिंकिंग ये रखे, उस पे डिवोट भी करें, and doing certain physical exercises also. Okay. I think I can supplement something to this question. My answer, in this age of competition, a lot of tension is there. Yeah. Dr. Nikhilesh asked question about NEET examination and all. What is the advice from my side is that you should have, suppose you are appearing for IAS examination. Everybody will not be selected in IAS. Yes. So there are only 1,000 vacancies. Only 1,000 people will get, and lakhs will not be selected. Now, in that scenario, what should be your approach? Should be that if I am not selected in IAS, I can certainly get selected in state public service examination. We should have secondary option. Second, you should have so many options, alternatives. Yeah. Because you see, otherwise you will end up in tension. एक सेंटेंस में अगर हम समराइज करें, ना तो आप किसी को टेंशन दें ना टेंशन लें. बिल्कुल. Neither give tension to others nor take tension. अभी अकबर साहब का जब लेक्चर चल रहा था तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर उनका कैमरा ऑन नहीं था, मुझको टेंशन आ गया. All of you were not having any tension because you were engrossed in listening and his cool lecture. वो बड़ा क्या कहते हैं, coolly he is delivering lecture, and I was looking at all the 200 participants were there and listening to वो PPT. हाँ, PPT की वजह से आपने स्विच ऑफ किया होगा. और देखिए एक और पॉइंट इनके लेक्चर से इमर्ज हुआ, फॉरगिव और फॉरगेट. अगर आप फॉरगिव कर सकते हैं तो बहुत बड़े आदमी हैं आप. आपके साथ किसी ने आपके साथ गलत सलूक किया, आप उसको माफ कर दीजिए. माफ नहीं कर सकते हैं तो फॉरगेट कीजिए.
फॉरगिव और फॉरगेट, इफ यू अडॉप्ट दिस फॉर्मूला, आपके 50% स्ट्रेस कम हो जाएगा, 50% प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। अगर आप पूरा 100% कम करना है आपके स्ट्रेस को, देन फॉलो द 8-fold पाथ प्रिस्क्राइब्ड बाय गौतम बुद्धा। अगर आप उनके 8 उसूलों को मानेंगे गौतम बुद्धा के, तो आपको भी निर्वाणा मिलेगा, आप भी बुद्धा बन जाएंगे। बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि जब से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली हम देखें सोशल मीडिया का इमरजेंस हुआ है, तो देयर हैज बीन अ ट्रेंड इन आवर सोसाइटी glorifying a few jobs like civil services examinations and NEET and JRF examinations, that their duties. But we know every duty has two aspects, but the brighter and the more charming aspects have been shown over social media, and our young chaps gets attracted to it. Our government, I think our government should take a step not to glorify these jobs in a way that today youngsters who are getting selected and they are, showing their charm by shooting videos and, having command over their subordinates and so on. So this is creating a kind of, attraction toward these jobs. That is why the competition is increasing and number of seats are limited. We cannot grow the number of seats. But definitely we can change the mindset up that suppose that we are teachers. Teachers are not being respected in our society. Why? Because even in social media, we see that somebody is just abusing teachers. The jobs is not being utilized, not being appreciated. कि भाई टीचर इतनी मेहनत करता है, उसको नेशन बिल्डर हम लोग कहते हैं। ये मतलब गवर्नमेंट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स नहीं ले सकती है कि जो हमारे ऐसे जॉब्स हैं उनको ग्लोरीफाई, मैग्नीफाई करे और वो लोगों तक पहुंचे कि हाँ इसमें इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम इन सब जॉब्स की बात करते हैं, अगर क्या उनको जो डार्कर एस्पेक्ट ऑफ दीज जॉब्स है, स्पेशली टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, जो डार्कर एस्पेक्ट इज दैट if they don't corrupt themselves, they don't take bribe, even they are not getting so much pay that they can afford such a lustful life. तो ये darker aspects of these jobs जो है वो हाईलाइट नहीं करते हैं, और हमारे जो सरकार है मीडिया पे इस पे कैप्चर नहीं कर सकती है कि आपने हाईलाइट किया है तो आप बताइए इतनी जो है आपके अंदर कहाँ से आई, आप 70-80 हजार सैलरी पाते हैं and you are showing you are having Fortuner cars. और एक टीचर होता है वो 60-70 हजार पाता है, उसके पास एक अल्टो कार भी नहीं होती है। तो क्या डिमीन करने का ये एक प्रयास नहीं है और जॉब्स को छोटा दिखाने का, और उसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है? हमें भी ये लाइफ स्टाइल चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि बिल्कुल क्लियर कट क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के हिसाब से अलग एक तरह का टीचिंग हो, और जो प्रोफेशनल, बहुत से देखिए कंट्रीज में आप देख लीजिए, जर्मनी वगैरह में देखिए बहुत से लोग आए कि मतलब इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा कोर्स है, आफ्टर दैट दे गेट एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। सब हमारे यहाँ क्या है कि ये सो कॉल्ड एकेडमिक में ज्यादा हम लोगों का स्ट्रेस है कि भाई अच्छा, इसीलिए तो हर आदमी को, अच्छा आजकल ज्यादातर देखते हैं IAS IPS, उसके बाद कुछ नहीं होता, फिर लोग डॉक्टर्स में कि नीट है, नीट एग्जामिनेशन भाई दो, ये वो, तो सब लोगों ने इसकी वैल्यू है। अब अच्छा, डे बाय डे कुछ सब्जेक्ट्स की वैल्यू जो है डिटोरेट भी हो रही है, जैसे अपने इंजीनियरिंग का है उतना ज्यादा नहीं है, अच्छे जॉब्स नहीं है, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट पीपल टू गेट जॉब। अच्छा, कुछ जॉब्स हैं तो हम प्रोफेशनल फील्ड्स में, IT फील्ड में जो है, अब मेरा तो खुद ये प्रेडिक्शन है कि हार्डली इट इज अ मैटर ऑफ डिकेड, या ये भी सब चेंज हो जाएगा, फिर AI आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, फिर क्या करेंगे लोग, समझो। तो उतना मतलब एक नेक्स्ट जनरेशन को कोई इक्विप भी नहीं कर रहे हैं, और उतना फंडिंग वैसी नहीं हो रही है कि जैसे कि आप इसमें हम उसमें जाएं, जिससे कि खुद बच्चों में भी स्ट्रेस कम हो और पेरेंट्स के अंदर भी हो। वो बस लगा देते हैं शुरू से कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है या कुछ। अभी भी मेजॉरिटी में फैमिलीज में बहुत कम होते हैं बच्चे, दे आप्ट कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइसेस, अपनी वो नहीं है। तो चॉइसेस हैं यहाँ पे, लेकिन अब क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज वैसे है नहीं ज्यादातर। अब बहुत से कोर्सेज आप देखिए कितना
कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बदले में देखिए जो आजकल BCA और MCA के स्टूडेंट ज़्यादा स्किलफुल है फॉर हैंडलिंग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये है कि बड़ा यहाँ मल्टीफेरियस एक तरह के फिनोमेना है और यहाँ पे, और कोई भी चीजें जो है एक तरह टारगेट नहीं है। ठीक है, ओके। Good afternoon, sir. I wanted to ask something. जी, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Thank you for such an informative session, sir. One thing I want to say that nowadays the teachers are overburdened because there's lack of teachers in most of the state universities rather than compared to the central universities. So there should be some stress management sessions or as such meditation sessions for the teachers also, because they are overburdened. Sometimes on Sundays also we have to go to conduct various exams like NEET and other exams that are being held on Sundays. So we are having very less opportunities sometimes to even get a day off. So there should be some kind of stress management and such sessions for the teachers as well. What I think in because today's scenario. yes, teaching is the highest stressful teaching, particularly in the school. School teachers are highly stressful as compared to the university or college teachers. Yes, sir. Yes, sir. And along with the college teachers on Sundays also sometimes we have to conduct some state exams and all. So we hardly get any time for ourselves or completing our work. Too much stress of getting the correction of copies, examination copies. So there should be some stress management session for the teachers also. I think so. Yeah. Thank you very much. Excuse me, sir. Sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, I'm Nawaz Rustani. Sir, first of all, thank you so much for delivering. Sir, I'm really sorry to interrupt in between, sir. It's 27 and we have to start the last class at 30. Mazhar Sahab, this is the last question. This is the last question and last answer, and we'll wind up. Okay. Ask that we have so many kinds of stress and we have so many ways to cope up with the stress management. But sir, I just want to know that what is the role of an organization work environment so that the employees their stress. What are they? The role of an organization or a leader. Of course, the stress in organizations or the occupational stresses are different. So in my lecture, I focused on the kind of the stress which an individual encounters or the faces. Some in the organization there is a role ambiguity or role erosion. Different kinds of the stresses are there in the organization, and moreover, it can be dealt easily with the workmates. Support is very much needed in dealing with the organizational stresses, and the relationship with the supervisor and the employees, that is also very much required for it. So organizational stress, social stresses, occupational stress are here. Once an individual will be able to deal with those stresses in easily, he can handle the other kinds of the stresses also, what he faces in the organizational occupation. Okay. Please propose vote of thanks. नमस्कार सर। बहुत खास थैंक्स थ्रू सर देने के लिए मैं प्रोफेसर AP बीजापुर सर का शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को करने का उत्तरदायित्व मुझे प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मैं प्रोफेसर अकबर हुसैन सर को विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट नामक महत्वपूर्ण विषय पर अत्यंत ज्ञानवर्धक, लाभप्रद एवं रोचक जानकारी दी। प्रोफेसर साहब ने आधुनिक जीवन के मनुष्यों की मानसिक स्थिति एवं परिस्थितियों को बड़े ही सरल रूप में और अल्प समय में गागर में सागर भरने के समान अपने विचारों एवं तथ्यों से अवगत कराया और हमें बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।
एक बार पुनः प्रोफेसर अकबर हुसैन सर और FIP एवं AMU की पूरी टीम को सहृदय धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर नागेंद्र मिश्रा जी, बेहतरीन हिंदी में आपने धांसू कहना चाहिए इसको, धांसू हिंदी में वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज किया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कॉलेज नागराल संगीत के प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत में। जी थैंक यू। नाउ द सेशन एंड्स। आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं कि 15 मिनट हम एक्सीड कर गए। नेक्स्ट सेशन हैज टू स्टार्ट एट 12:30, तो कोई ब्रेक नहीं है। बीच बीच में आप जाके अपना चाय का कप ले लीजिए और पीते रहिए, अदरवाइज यू आर सिटिंग सिंस 9 o'clock in the morning। ये आपका जील देख के बड़ी खुशी हो रही है। हमारा प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल लग रहा है। बहुत शानदार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू अकबर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.